जी सर। ओके ठीक है. So after 5 minutes we can start. Sir, shall we start? I think we have more than 20 now. Yeah, sir. More than. Okay, so just give me 1 minute. It's better to start, otherwise by lunch we will have problem. So I think there is sufficient light in my room. Yes, sir. Okay, fine. So now can I share my screen? So now we have Dr. Kunal
Keshri. Dr. Kunal Keshri is currently working as an associate professor at GBPSSI Social Science Institute, Prayagraj. He attended his master's degree in geography from Delhi School of Economics, University of Delhi, and obtained his MPhil and PhD in population studies from International Institute of Population Sciences, Mumbai. His His research area includes migration and development, urbanization and environment, public health, with a special focus of nutrition, maternal and child health, and population aging. He has published 3 books and more than 20 research papers in reputed international as well as national journal and edited book, and he has also more than 500 citations. He has been a consultant to UNFPA and Population Council. He is a registered collaborator from India in the project International Migration Around the Globe, IMAG, founded by Queensland Centre for Population Research, the University of Queensland, Australia. He has now he is leading two research project understanding the pattern and process of temporary and permanent labor migration from rural Jharkhand, and exploratory study funded by ICSSR. And second one is food insecurity and dietary diversity along low-income migrant workers affected by COVID-19 in India, funded by UK. He is executive committee member of Indian Association for the Study of Population and managing committee member of International Institute of Population Studies Alumni Association. Now I request Kunal sir to start his lecture. Kunal sir, over to you. Yes. Thank you, Mani, for this elaborate introduction. वैसे इतना ज़्यादा के काबिल नहीं हूँ तो now so we can start thing. So I think we have more than 20 persons. So today I will be dealing one of the topic which has been very few people work on that. People work on health, people work on fertility, mortality, work on employment, labor, but migration is first very less understood by people, theoretically, conceptually, and technically also. So it is very important to understand some basic concepts of migration from census data and census data. It's true that we lack migration sources of data of migration. The largest source of migration data from last 50 years is the Census of India. Also, NSSO on regular interval used to publish some data on migration, but the last data which we have detailed data of 2007-8 NSS data. Now I think from PLFS will sometime provide some data on migration. So without wasting much time, I am sharing my screen. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so my topic is how to use the census and the NSS data for migration analysis. So currently I'm in GBPanth and my mail ID is keshri.kunal@gmail.com. You can contact anytime. This is the outline of my lecture. First, I will try to provide basic introduction, conceptual framework of migration. Then what sources are available in India for migration data. Some are regional sources, some are national level sources. The census is the oldest and most relevant data of migration, data source of migration. Then we have sample surveys, the national sample survey, the India Human Development Survey from last 2 years, 2 rounds actually it is publishing migration data, and hopefully this round is also going on. We will get data soon. Then some regional surveys are also there. So first, how to use the census data and how to use the national sample survey data. I will go with some conceptual clarity for you people, and then I will show some
sources of data. Directly you can download and you can start analysis. So migration, as we all know, basically I'm a demographer, so I see migration from demographic point of view. Migration is the third important component of demographic change after fertility and mortality. What is the uh, demographic change? Demographic change means how population of any place is increasing or decreasing or stabilizing. How people are coming to this place from other place. So fertility means people are coming directly. They are born in this place by birth. They are citizen or people of this place. Or mortality, they are leaving this place. But there is third component like migration. I am not born in Allahabad, but I am a migrant from Jharkhand. Okay, so migration also affects the real number of people in particular place. So the measurement and analysis of migration have some complexities. That it is not one-time event. It's true that fertility is a one-time event. Person takes birth at one place, and mortality is also one-time event. Someone has died, but migration is not a one-time event. One person can migrate many times in his or her career. One person can migrate to other state. One person can migrate to other country. Even he can return to his place. Even he can migrate many times. Like I have migrated from my place of birth, Jharkhand, to Delhi. For a few years, I was in Delhi, and then I migrated to Mumbai. And from Mumbai, I migrated to Allahabad. I don't know where can I go from this place. So migration is not a one-time event. It's a series of events. Some people never migrate whole of their life, but some people keep on migrating. So unfortunately, globally, there is no standard source of internal as well as international migration data. Standard source means like we have DHS, Demographic Health Survey, is almost standard for most of the developing countries, even developed countries data. But migration has no particular definition. UN has tried to establish some definition for internal migration, but for the data collection purpose, these definitions have not been used on regular interval. It is very important to understand data sources of migration in India to do any kind of migration analysis. Okay. So migration data can be obtained mainly from three sources in India. First is the decadal census. The census I will discuss in detail. Surveys, the National Sample Survey, then India Human Development Survey. If you talk about the regional surveys, in last 10 to 20 years, we have seen a lot number of surveys conducted by regional agencies like Kerala Migration Survey by Center for Development Studies, Kerala, Trivandrum. Middle Ganga Plain Migration Survey, some of the students from IIPS, they must be aware of that. Even they have released a detailed report and data of this survey. So you can easily analyze this data. Raw data is also is in public domain now. So Middle Ganga Plain Migration Survey was conducted in Eastern UP and Bihar for almost 6 months, and it has a more than 5,000 household sample. So it can provide at least for Eastern India, it can be a representative survey data. Then international migration from Gujarat survey. It was also a 10,000 household survey conducted by IIPS Mumbai, mostly focusing on international migration. So this data may be also available from IIPS website. So now coming to census as a major source of migration in India. Indian census is decadal. Decadal means after every 10 years, in every 10 years this is collected, and it is conducted by Office of Registrar General and Census Commissioner of India, Ministry of Home Affairs, Government of India. So what is census? Census is of population is the total process of collecting, compiling, evaluating, analyzing, and publishing demographic, economic, and social data pertaining at a specific time to all persons in a country or in a well delimited part of a country. So it's a definition given by UN, and all census organizations follow this. So it is the main source of information on migration in most countries of the world, and so for India. Immigrants are also enumerated, but the Indian census, being de facto, does not provide information of Indians who emigrated. Problem ये है Indian migration में कि we have
only information of people who have come from other places. Similarly, we have only information of people uh, as de facto basis. Like, I belong to Jharkhand, but I am staying here from last more than 10 years. So I am a usual place, a person, usual resident of this place, Allahabad. So whenever there will be census, as census is being extended, dates are extended. Whenever it comes, people come for enumeration or some app-based thing comes for enumeration. So according to the rule of census, I will be counted in this place. If they go to my home place, there will be no information of uh, out migrant according to census data. Only in migration is recorded. That's why our census particular when you talk about the migration is de facto. हाँ, थोड़ी देर में. So de facto means at the place where a person is actually found on the reference date of the census. If there is a 28 days or 1 month of census reference days, so in that duration, that reference period, that person should be found in that place only where he is a usual place, a usual resident. And the latest migration data available from the census is 2011 census. It was painful for a researcher like us that it was released after 7-8 years, but still data is okay. We can use that. Some errors are there. It happens with every census, but we have to check that and correct that. So the release of census data took a lot of time actually this time. If you go to the history, information on migration has been collected since 1872. Okay. And in India, up to 1961, census data on migration was obtained through particulars of birthplace. Birthplace means if enumerator has come to Allahabad, he will ask from me, which is your birthplace? I will say my birthplace was Jharkhand. So I will be considered as a migrant, okay, on the basis of this birthplace migration. But problem was that this birthplace definition was followed till I think 61, but there was some problem. Try to understand it. See, like I am a migrant. I came from Mumbai. My last place of residence was Mumbai. But when census enumerator come to Allahabad, in my place, they ask, which is your birthplace? I will say, my birthplace is Jharkhand. So I will be directly considered as a migrant from Jharkhand to Allahabad. But this is not the real data. I have a series of migration history. I have moved from Jharkhand to Delhi, Delhi to Mumbai, Mumbai to Allahabad. So there is 3-4 steps of migration. So this is being missed by census. So to remove this error, again one thing, if I have returned to my birthplace, suppose after 10 years, 20 years, if I return to my birthplace, an enumerator comes to my birthplace and asks Dr. Kunal Keshri, which is your birthplace? I will say Jharkhand. And where are you being enumerated? In Jharkhand? So I'm not migrant. However, I have traveled whole 50 or 30% of my age, 20 years in migration. I have migrated to different places. So this underestimate real number of migrants. That's why after suggestions of many demographers, Census of India has started a collection of data on the basis of place of last residence. That means whether this place where you are enumerated is different from your last place of usual residence. Usual residence means at least you have to stay there 6 months. And in this place also you have to stay for at least 6 months to make it usual place of residence. There should be a change of usual place of residence to be considered as a migrant at this place. So I was in Mumbai
for more than 5 years. So I have crossed the limit of 6 monthly criteria. And in Allahabad, I am staying from last 10 years. When census people come next year or this year, I will say no. I am my last place of usual residence is Mumbai. So I am a migrant. So this according to place of birth, I am a migrant. But when I go to my place of birth again and on the basis of place of last residence, again I will be termed as a migrant because my last place was would be the Allahabad. Okay. So this is the conceptual difference between birthplace and last usual place of residence migration. Data in 1981 census, information was obtained from about the regions of migration from the place of last resident data and duration of residence. That means if you have migrated from Mumbai to Allahabad or Prayagraj, so what were the regions of migration? So 6-7 regions are there. I have to choose only one region. There is no series of regions like first primary region, secondary region, because sometimes people go for studies, but they get job there. So, but you have to mention only primary region. And the duration of residence at the place of enumeration. Okay. And in 2001 census, the rural urban status of place of birth data was not collected because it was almost redundant. Also, the category of natural calamity as one of the reasons for migration was excluded as the new region moved at birth was added. Moved at birth when uh, at the time of delivery, some people move, migrate. So this is also collected to check the real migration data. So when we talk about the questions of migration, non-migrant census, India, we have a record of 18. I am giving just idea of 1971 to 2011. So on the basis of place of birth concept, we had questions on place of birth, rural to urban, district, from which district you are coming, state and country. Then for place of last residence is asked. Whether you are coming from rural or urban place is asked. Last district, last state, and last country is asked. Then we have regions of migration. Then we have the duration of residence at the place or town. So before showing this one, I want to lead you to the census website directly. So I hope my screen is being shared. Okay. Please confirm. Yes, sir. Great. So you people also try this thing. Just type census of India. Go to census of India, enter. You will find 2-3 websites: Wikipedia, census.net, census200co.in, Indian government reports. No, don't go to that. Just search this one, censusindia.gov.in. That is the real census website, authentic government website. So you go to Government of India website, you will find the newly designed, very beautifully designed census website with Honorable Home Minister, who is the direct in charge of the census operations, and our Honorable Prime Minister Modi ji. So I really appreciate that this time. Earlier we used to एक्चुअली हम खो जाते थे कि सेंसस में कहाँ क्या मिलेगा, माइग्रेशन का डेटा किधर रखा हुआ है. पिछले 2-3 साल में ये एक्सरसाइज बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ. कभी माइग्रेशन का अलग से एक फोल्डर बना के रख देते थे, कुछ करते थे. 91 का सेंसस का डेटा नहीं मिलता था. आर्काइव में जाओ तो 2000 का मिलता था, 2001 का. सो इट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, बट सम थिंग्स आर बीइंग at least systematized. So this is the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India, which is the main operating body under Ministry of Home Affairs, Government of India. So you have several tabs. Go to this about the ministry. We as a researcher, we are not interested. Meet Registrar General, no, but we are interested in census organization's functions. Our divisions like census division is there. Map division, who are the officers. If you want to meet them, collect some data, you can go there. Then most important thing is the data and resources. Act is also important. When you want to write some paper, you have to see the census acts also. You
can refer them. But data and resources are most important thing. So you can see what things are available. Population finder. Okay. So population finder means, so you can get data of any particular place. You type that name and on the basis of basic, that is called primary census abstract PC. Okay. Then we have census tables. This is the main data we want to access, whether it's for migration, whether it's for fertility or socioeconomic characteristics. Then we have also digital library. We have schedules. We have visualization, census question. That is very important, which we are dealing. That's why I want to click that. So when I click that, I find this window. See, very beautifully, this is the first time I'm looking. Like census operations started in India in 1872, but first synchronized census was started in 1881. So from 1872 to 2001, they have detail of all census questions. You just drag it. In 1872, they have a detailed questionnaire, but I'm interested in migration questions. Control F, MAIGR. So from earlier also they have some questions, but not in the name of migration directly. So the term migration was used, I think, in at the time of migration. Census asked migration questions, but not in the name of direct migration. They would ask like, what was your place of birth? What is your current place of birth? This kind of questions were asked during 1881 or something like, see, place of birth is there. So there is no mention of migration. But from this data, we could calculate migration in earlier time also. See, birthplace and current place. Current place, it's easy to know because place of enumeration is current place. If place of birth is different, then according to that definition, person would be migrant. So first time migration term was used in census in 1881. Reasons for migration actually, but place of last residence was also a term which gave information of migration, as I explained to you before. Last place of last residence, sorry, place of last, see, last residence information. From 1971 onwards, they asked questions on place of last residence. Then they asked rural, urban, district, state or country. So it gives ample of information to do any state-wise interstate migration analysis. Then duration of residence was also important. Okay, so these information collectively give you a good idea of migration information. Similarly, if you move forward, regions of migration have been introduced from 1981 census. So 1981, if you see 1981 से इन्होंने regions of migration पूछना शुरू किया. 2001 तक अभी तक तो पूछा है. 2011 की भी अभी मैं देखता हूँ, उसमें भी शायद इन्होंने शेड्यूल अपलोड किया हुआ है. They would be asking, see, all the migration characteristics are asked. Regions for migration duration, state this 24 नंबर जो है यहाँ से यहाँ तक इन्होंने सारा. उसके बाद फर्टिलिटी के क्वेश्चन है, मेनी अदर क्वेश्चन आते हैं. So I hope यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. Then 2011 डेटा अभी टेबल पे है आपके, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो. So migration section of household schedule, which I have, for which screenshot is taken. So migration section has two columns. First, birthplace. Old question is still there. If within India, as I already told that it is based on the place of enumeration. जहाँ वो आदमी मिला census reference time के समय, वहाँ उससे पूछा गया कि आप यहाँ के visual residence हो. First, अगर वो एज ए टूरिस्ट आया है तो उससे वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाए. उसके या उससे को ये बोला जाएगा कि आप अपने रियल में जहाँ पे यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वहाँ के बारे में बताइए.
बताइए, तो वो अपने बारे में बता सकता है. एंड mostly it is de facto census, so people who came to this place, okay, and staying usually here are asked about these questions ki where was your place of birth, where is your place of birth. If within India, you have to answer village name, town, district and state. Okay, तो 1 और 2 जो कोडिंग होती है वो यूजुअल कोडिंग है. But for migration and by the place of last residence, जो कि ज़्यादा important data है. So if within India, write the present name of the village or town, okay, district and state, and also अच्छा, if you have come from outside India, तो वहाँ का district और उससे हमें मतलब नहीं है, आप बस country बता दो. Whether you have come from Bangladesh, Pakistan, whether Indonesia, but you are staying in India from past more than 6 months. And at the time of migration, rural and urban, okay, whether you are coming from rural place or urban place, it is also noted. Further, other question is reasons for migration. Work, employment, pehla reason. Business, second. Education, third. Marriage, fourth. Moved after birth, 5. Moved with household, 6. Any other reason you can do. Okay, duration of stay in this village or town since migration. Suppose I came from Mumbai 10 years back, तो मैं बताऊंगा इसमें 10 years. If less than 1 year, you have to write 00, क्योंकि इसमें मंथ लिखने का ऑप्शन नहीं आता, बस या तो 0 year या तो 1 year. 1 year is completed year. So I hope this schedule is clear, because schedule आप समझते हैं तभी data analyze कर पाते हैं. Any problem in this schedule? Hello? No, sir. Okay. No, sir. So how to download data, ये सब तो ठीक है. आप यहाँ पे अब हम मूव करते हैं अगेन सेंसस साइट पे. Okay. So these are the list of questions right from 1872 census. Even you can write a brief small research paper on the basis of these questions, and if you are interested in historical demography or history of migration data and all, you can go to some of the prominent institutions like IIPS Mumbai has a repository, and I think IIM Bangalore also has this old census records. हार्ड कॉपी रिकॉर्ड्स को स्कैन करके इन्होंने रखा हुआ है. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्टोरिकल डेमोग्राफी, यू कैन डू दिस काइंड ऑफ रिसर्च. देन अगेन वी मूव टू सेंसस क्वेश्चंस हमने कर लिया. ड्रॉप इन आर्टिकल्स. ड्रॉप इन आर्टिकल जो इन्होंने इस बार लगाया है, एक टैब है, तो इसमें क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट PDF फॉर्म में कुछ आर्टिकल्स हैं 2011 सेंसस के बारे में, या जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. तो जस्ट यू सर्च कीवर्ड. आपको माइग्रेशन का कोई आर्टिकल चाहिए, MIGR. फॉर्चुनेटली वी हैव वन आर्टिकल showing result, search, not showing, whatever. Migration. Yes, कंप्लीट माइग्रेशन लिखने पे आपको मिलता क्या है, एक ड्रॉप इन आर्टिकल मिलता है PDF फॉर्म में, जो बेसिक्स ऑफ 2011 सेंसस जो है. इसके अलावा मेटा डेटा भी मिलेगा आपको, थोड़ा और सर्च करेंगे तो उसमें पूरी सेंसस रिपोर्ट्स जैसा है माइग्रेशन का. सो दिस इज द ड्रॉप इन आर्टिकल. माइग्रेशन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, है ना. इट इज 72 से उन्होंने माइग्रेशन कलेक्ट करना शुरू किया. दीज और इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट. बहुत बड़ा नहीं आर्टिकल है, छोटा सा 2 पेज का है, बट गुड फॉर इन्फॉर्मेशन एंड रेफरेंस पर्पस. किसी डेफिनेशन पर रेफर करना है, यू कैन यूज दैट. फर्दर आप go to data sources, go to census tables. Okay, just click here. ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि पहले 91 का नहीं मिलता था हमें, 2001 का मिल जाता था. तो इन्होंने क्या किया है, एक पैटर्न पे
सारा डेटा, चाहे माइग्रेशन की बात करें, फर्टिलिटी की बात करें, सब इन्होंने लगा दिए हैं। सो सेंसस ईयर दिया हुआ है, 91 से ही एक्सेल में डेटा मिलना शुरू हुआ था, उसके पहले तो हार्ड कॉपी मिलते थे। सो 91, 2000, 2001। ओके, टेबल सीरीज कौन सी चाहिए आपको? ए सीरीज चाहिए, बी सीरीज चाहिए, सी सीरीज चाहिए। ए सीरीज फॉर एज, बी सीरीज फॉर सोशो कल्चरल, सी फॉर सोशो कल्चरल, है ना। देन फर्टिलिटी का डेटा है, माइग्रेशन है, स्लम है। तो सर्च फॉर माइग्रेशन डेटा, जस्ट क्लिक ओवर देयर, तो आपको एक फिल्टर हो जाएगा यहाँ पे। अब इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन सेलेक्ट 91, you can select 2001, you can select 2011। तो माइग्रेशन की सारी सिलेक्शन आपने कर ली है, माइग्रेशन क्लिक किया यहाँ पर, तो आप भटकेंगे नहीं। बहुत सारे टेबल है, थाउजेंड्स ऑफ टेबल्स आर देयर, लेकिन आपका फोकस क्या है? ओके, तो वी आर फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर फाइल। हमेशा याद रखना आप कौन सा कर रहे हो, तो बेटर है कि पहले 91 का सिलेक्शन करो, उसमें पता चल जाएगा कितने टेबल्स हैं। You have ticked 1991, you have ticked migration, two selection filters are operated। We are not interested in place of birth क्योंकि इसमें माइग्रेशन मिलेगा लेकिन एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। सो माइग्रेंट्स D2 टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक माइग्रेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए। Migrants classified by place of last residence and duration of residence of immigration। अब इन दोनों में देखते हैं क्या मिलता है हमें। 32 टेबल्स आर देयर, लाइए कर ही देता हूं। Sorry for the disturbance। So when you go in this, focus on number of tables। D2 appendix, migrants classified by place of last residence and duration of residence in place of enumeration। 1991 का डेटा है ये। We have 32 tables, but we are interested in what? India level analysis। All states data is there, India, Andhra, सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 91 के। उस समय जो स्टेट्स थे, उस समय झारखंड नहीं था, बिहार में इंक्लूडेड था, डिस्ट्रिक्ट तो थे। तो इंडिया में क्लिक करो, एक्सेल download, you will find 91 data downloads। It depends on your internet speed, within 2 minutes। So I have found this one, double click on that। So this is our 91 here। So in all data there is a coding 1991 year, D020 like a place of last residence, plain basic data, 0110 India। ओके, यही कोडिंग लगभग तीनों में फॉलो होती है। थोड़ा सा हम कुछ अपेंडिक्स का ए लगा देते हैं, कभी बी लगा देते हैं। सो दिस इज आवर माइग्रेशन डेटा बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? No, sir। Have any of you seen this kind of tables earlier? I would be interested to know, please Yes, let sir। me know। किन्होंने देखा है? Yes, sir। Yes, please। Okay, Anurag has seen, and more people। So have you tried to analyze this kind of tables? Yes, sir। Yes। Okay, great। तो अब जब हम 1991 सेंसस टेबल्स देखते हैं तो सॉरी, एक दो विंडो खुल चुके हैं, एक पे काम करना। यस, दिस वन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेबल्स फर्स्ट। प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस मतलब वो बंदा कहाँ था, है ना। अभी उसके प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन, ये है प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन। प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन पे एन्यूमरेटर जाता है और उससे उसकी बेसिक डिटेल्स लेता है। प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन यहाँ पे मान लो इलाहाबाद है, लास्ट रेसिडेंस इसका कहीं और है। ठीक है, तो ये इंडिया का डेटा है। टोटल फिगर है एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज 91 में
सेंसस का उस समय प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ पे नहीं हो पाया था ऑपरेशंस। तो एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये एडजस्ट भी करते हैं हम लोग बाद में जब टेबल्स जनरेट करते हैं तो। सो इट्स ऑलमोस्ट 23 करोड़ 21 lakh population was considered as a migrant on the basis of place of last residence. Okay, so this is the figure we found in 1991 excluding Jammu and Kashmir. Who are these people who have ever migrated in their lifetime on the basis of this concept? Okay, अब फिर ये बात कर रहे हैं 23 करोड़ जो पीपल हैं यहाँ पे, ये तो टोटल माइग्रेंट है। ओके, ये टोटल माइग्रेंट हो गए, ओवरऑल माइग्रेंट्स, इन माइग्रेंट्स टू एनी प्लेस इन इंडिया, बट अदर concept is given here, last place anywhere in India, elsewhere in India। तो अब ये वाला फिल्टर जब लग गया तो हमारा कुछ कम हो जा रहा है। Why? पांडे जी मेरा लेक्चर चल रहा है, 1 बजे मैं मिल पाऊंगा। हाँ रहूंगा 1 से 1:30, खाना खा के 1:30 बजे कर लेता हूँ। हाँ नहीं, 2 बजे फिर शुरू हो जाएगा मेरा, 1 से 1:15 के बीच चाहे तो मैं कर तो सेकेंड हाफ में कराइए फिर 2 से 3:30, 3:30 से 4 के बीच। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सब सैटरडे तो बिजी हूँ इसमें 9 से 5। ठीक है, देख लीजिएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो मैं कहाँ था? टोटल माइग्रेंट्स 23 करोड़। अब लास्ट रेसिडेंस एल्सवेयर इन इंडिया की जब बात करते हैं तो यहाँ कौन माइनस हो गए? फिर ये 22 करोड़ आ गया, तो बाकी वो लोग कहाँ चले गए? These persons have come to India in their lifetime। 10 साल पहले, 20 साल पहले, कभी भी वो बाहर से आए थे। 1947 के बाद इंडिया की एक टेरिटरी बन गई, तो ये लोग बाहर से आए थे, इसलिए उनको हम हटा दे रहे हैं। एल्सवेयर इन इंडिया, तो जो ये हैं 22 करोड़, वो इंडिया में ही इनका कहीं रेसिडेंस था, इंडियन टेरिटरी के अंदर था। तो ये इसमें क्या है? इंटरनेशनल इन माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स भी इंक्लूडेड है इसमें, प्योरली इंटरनल माइग्रेंट्स हैं। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। आ रहा है आप लोगों को समझ में? यस सर। ओके सर इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से सर डिफाइन कर दीजिएगा, पॉसिबल? हाँ कर रहा हूँ। टोटल माइग्रेंट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। वो बंदा इसके पहले कहीं रह रहा था, भले ही 2-3 बार उसने प्लेस चेंज किया हो सकता है यहीं रह रहा हो, है ना, वो भी काउंट होगा एज अ माइग्रेंट। इलाहाबाद से वो मुंबई गया, मुंबई से वो दिल्ली गया, दिल्ली से वो राजस्थान गया, 4-5 बार माइग्रेशन किया, 2-2, 3-3 साल कहीं रहा, फिर इलाहाबाद आ गया, तो लास्ट रेसिडेंस उसका राजस्थान था, तो उस बेस पे ये माइग्रेंट है पहला। अब ये टोटल माइग्रेंट की जो फिगर है, पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, चाहे वो 10 साल पहले, 20 साल, इसमें ड्यूरेशन की बाउंडेशन अभी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अभी प्लेन डेटा है, ड्यूरेशन है आगे कई तरह के फिल्टर होंगे, लेस देन 10 years ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, सब हम नहीं जा रहे थे डिटेल में, पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए तो ये सब चीजें आप समझ सकते हो। तो ये जो 23 करोड़ पीपल हैं, इनका घर हो सकता है इंडिया में था पहले या बाहर भी था, सब मिक्स्ड हैं इसमें। लेकिन ये जो प्योरली इंडियन इंटरनल माइग्रेंट की बात आएगी तो हम कहेंगे इंटरनल माइग्रेशन विद इन इंडिया, इनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस भारत के अंदर ही, कश्मीर हो, आपका कन्याकुमारी हो, आपका तमिलनाडु हो, आपका नॉर्थ ईस्ट हो, आपका बिहार हो, यूपी हो, वहीं से माइग्रेट किया किसी भी टाइम इन देयर होल लाइफ। ठीक है, ओके। सो ये नंबर कम हो गई, मतलब इसको इससे माइनस करो, एक एक्सेल हम खोलते हैं।
कंट्रोल V और ये this minus this minus this. So we have 62,25,000 people जो कभी बाहर से माइग्रेट होके 91 के सेंसस में काउंट हुए हैं, जो फॉरेन या कहीं से माइग्रेट होके आए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही साल के अंदर, पूरे लाइफ टाइम। हो सकता है आज़ादी के पहले भी वो किसी और पार्ट में थे इंडिया के, लेकिन इंडिया टेरिटरी डिफाइन हो गई 1947 में, तो उसके बाद वो पाकिस्तान का पार्ट पर गया या बांग्लादेश का या भूटान का, तो वो इंटरनेशनली इमिग्रेंट यहाँ पे हो गए। वो अलग बात है, उनको यहाँ के सिटीजनशिप मिल गई या जो भी हो गई, लेकिन दे आर इमिग्रेंट। ठीक है, अब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Great. Then other thing, I am only looking at the totals. बाकी अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा जो क्लियर हो रहा है मैं वो बस बता रहा हूँ आपको, जो आपको समझाना है। ये क्लियर हुआ अभी। Then we have this one, इसको हमने अभी क्लियर किया है। ओके, अब एक और है, ये टोटल बस चल रहे हैं, है ना? मैं रूरल अर्बन में भी नहीं जा रहा हूँ, विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट ये बेसिक क्लियर हो जाए। अब ये क्या है भाई? इसमें क्या है? Within the state of enumeration but outside the place of enumeration. Place of enumeration आपका विलेज हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ही अभी कंसिडर कर रहे हैं इसमें। तो ये भी इंटरनल माइग्रेंट्स है, इसी के पार्ट हैं। ये क्या है? Within the state of enumeration but out of the place of enumeration. इलाहाबाद में सेंसस ऑपरेशन हुआ, पूछने आए मेरे घर में लोग। मेरे घर में कोई ऐसा आदमी है जो 1 साल या 2 साल पहले विद इन स्टेट कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आया है यहाँ रहने। लाइक सपोज माय वाइफ, वो किसी दूसरे यूपी के ही किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे रहने आई है, यहाँ रह रही है, ठीक है? तो शी विल बी द विद इन स्टेट माइग्रेशन। अपने प्लेस ऑफ इनमरेशन से, इसका प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस जो है वो यूपी के ही किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन अभी वो कहाँ मिली है? ओके, प्लेस ऑफ इनमरेशन उनका कहाँ? इलाहाबाद है। तो सी इज माइग्रेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटर स्टेट विद इन स्टेट माइग्रेशन, ठीक है? वो स्टेट के अंदर माइग्रेशन इनका काउंट हो रहा है। तो इस वाला जो डेटा है इंडिया का टोटल, इसमें इंटर स्टेट माइग्रेशन को हटा दिया गया। सिर्फ विद इन स्टेट माइग्रेंट पूरे इंडिया में अपने अपने स्टेट के अंदर जो लोगों ने माइग्रेशन किया, ये काउंट हो रहा है। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो हाँ, ये विद इन स्टेट है, इसको आप कंफ्यूज मत करना कि ये वाला कम कैसे हो गया इसमें। अच्छा, एक एक लेवल। हाँ बोलिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन you can say inter-district migration. हाँ, yes, you are right. Inter-district migration, but within state. ठीक है, within state inter-district है ये। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये रो नंबर 12 and row number 15, these are the exact same but their totals are different. कौन सा? Can you explain why? रो नंबर row number 12 and row number 15. हाँ, 12 ये और 15 जी। हाँ, ये लास्ट रेसिडेंट एक्चुअली, ये मैं 1 मिनट देखता हूँ ये क्या टोटल आ रहा है। हाँ, ये तो रूरल अर्बन का आपका टोटल हो गया। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, लेट मी चेक। ये वाला बोल रहे हैं ना 15, ये ठीक है, लेट मी चेक। जी सर, 12, 15 and 18. हाँ हाँ,
12 तो हमने डिफाइन कर लिया। 15 लास्ट रेसिडेंस विद इन इंडिया, अच्छा ये भी टोटल है, हाँ इसको भी हम वो कर लेते हैं आउटसाइड। एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, कोई इंफॉर्मेशन इसकी मिसिंग तो नहीं है। ड्यूरेशन इज ऑल्सो सेम। यस, लास्ट रेसिडेंस एल्सवेयर इन इंडिया, ये रूरल था, ठीक है, इस कम हो गया, अर्बन कम हो गया 18,000। टोटल माइग्रेंट में क्या हो रहा है यहाँ पे, मेल फीमेल, ठीक है। यस, दिस आई हैव टू चेक व्हाई इट इज कमिंग लाइक दैट। और कौन कौन सा है, ये वाला हो गया एक, लास्ट रेसिडेंस विद इन इंडिया, रूरल अर्बन, ठीक है हमारा। कोई इन्फॉर्मेशन लग रहा है यहाँ पे इस टेबल में और होनी चाहिए थी, शायद हम किसी और स्टेट का देखें तो कुछ पता चले। कुछ मिस हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हो, आपके पास है ना टेबल, हैव यू डाउनलोडेड यू ऑल? No, sir. इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है ना, यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी वही है। ओके, लेट मी चेक, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बेसिक्स, उसके बाद देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। Okay. ओके ओके, तो ये वाला जो हुआ विद इन द स्टेट ऑफ इन्यूमरेशन बट आउटसाइड द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन, मतलब विद इन स्टेट माइग्रेशन जो भी हुआ है यहाँ पे है। तो इससे इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं अपने एक्सेल में। सो दिस वाज द टोटल ऑलरेडी वी हैव। इसके बाद ये फिर से इसको माइनस कर देंगे तो हमें एक मोटा मतलब अप्रोक्सीमेट फिगर मिल जाएगा कि इंटर स्टेट माइग्रेशन क्या होता है, कितने लोग हैं इसमें। सो अराउंड 26 lakh 68, no sorry, 2,66,000, 2 crore 66 lakh people interstate migration on the basis of their whole माइग्रेशन हिस्ट्री, वो पूरे लाइफ टाइम का भी, ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर माइग्रेट किए या 10 years। तो ये डेटा हमारा मिलता है, ठीक है। फर्दर विद इन द स्टेट ऑफ इन्यूमरेशन ये हो गया, but outside place of elsewhere in the district, in elsewhere in the district हम देख सकते हैं, ये इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं इसे, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन, ये जो फिगर आ रहा है। सो दिस फिगर इज व्हाट, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहां पे आप माइग्रेट कर रहे हो, एक विलेज से दूसरी जगह जा रहे हो विद इन डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन, तो इसमें ये सब चीजें इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाला एक्सक्लूड हो गया, तो ये फिगर हमें मिल जाता है 1403,570, मतलब कितना हो गया 14 करोड़ कुछ। ये पूरे इंडिया की बात हो रही है, ओके। इस पे मैं फिर आऊँगा या तो पोस्ट लंच में थोड़ा सा टाइम निकाल के, या नेक्स्ट एक और क्लास होगी उसमें मैं देखता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है इसमें। देन वी हैव एक और चीज़ गौर से देखिए इसमें, एक जगह इसमें ड्रैग करते जाएंगे अगर डाउनलोड किया है तो, हाँ पहले तो ये इंडिया का फिगर है यहाँ से यहाँ तक, रो 1 2 3, ये पूरे इंडिया की बात हो रही है यहाँ तक।
हम अगर हाईलाइट कर दें, दिस इज इंडियन फिगर। उसके बाद स्टेट वाइज कुछ ये दिखाना चाह रहे हैं, बट इंडियन फिगर में क्या है, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस पे ध्यान दीजिए, यही चीज चलेगा। बट यहाँ पे ये जो है, ये तो टोटल की बात हो रही है, लेकिन ये फिर स्टेट वाइज बताना शुरू करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के टोटल माइग्रेंट्स हैं। ओके, इसके बाद आंध्र प्रदेश के माइग्रेंट्स दूसरे स्टेट से जो आए हैं, ओके, उसकी बात करते हैं। एक मैं एक्चुअली वो ढूंढना चाह रहा हूँ जब 0 हो जाता है, क्योंकि मैं 2001 वाले में दिखाता हूँ, 91 में लग रहा है वो चीज़ थी नहीं। इफ आई गो टू द 2001 तो आपको चीजें और Yes, clear sir. है ना, In 2001 में है ना? 2001 11 mentioned there. हाँ हाँ, क्योंकि अभी इम्प्रूव हुआ है, ये 91 के डेटा में थोड़ी सी दिक्कतें थी, 11 में भी है ये मेरे ख्याल से। यही सब चीजें इसमें भी हैं। मैं एक बार बस इसको, हाँ, इसमें इंडिया जहाँ खत्म हो रहा है वहां से हम देखते हैं। क्योंकि इसका डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग किया है इन्होंने। दिस, ठीक है, यहाँ तक आपका इंडिया है, इसको भी एक बार देख लीजिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया, तो 2000 ये 11 का डेटा है, दिस में ये 2011 डेटा, इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस के बेस पे है, एन्यूमरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो फिर इसको देखेंगे, टोटल फिगर जो है हमारा, टोटल माइग्रेंट इंडिया में इंक्लूडिंग इंटरनेशनल, ठीक है, 45 करोड़ है ना। लेकिन विद इन इंडिया की अगर बात कर रहे हैं हम, ये वाला, ये तो पहले इंटरनेशनल हो गया। अब विद इन इंडिया की अगर बात कर रहे हैं हम, तो इतने माइनस हो गए, ठीक है। ये फॉरेन से नहीं है, भारत में ही इनका जन्म हुआ या भारत में ही माइग्रेट किए। 44 करोड़ 99 लाख, ठीक है। वैसे ही विद इन स्टेट वाले इतने हो गए। तो यहाँ पे तो खैर मैंने 91 वाले में बता दिया है। अब एक जगह आप देखेंगे, ये पहले दूसरे स्टेट की जब बात आती है, ये डेटा सही से अरेंज्ड है, ये ऑटोमेटिक जो सेंसस से मिला मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैंने कोई इसमें काम नहीं किया अभी, अरेंजमेंट वगैरह नहीं किया है। यस, दिस थिंग, इस पे आपको ध्यान देना है। ये 0 क्यों हो रहा है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। जम्मू कश्मीर का आदमी, ठीक है, ये पूरे इंडिया की बात थी, उसमें तो चलिए हमने समझ लिया। अब जम्मू कश्मीर का आदमी जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पे लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, ओके।
और ये पूरे इंडिया में कहाँ जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये स्टेट वाइज फिगर को ओ करके निकाला गया है। इन माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इनका लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस जम्मू कश्मीर था, 28 लाख। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे नहीं, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के फिगर्स हमारे चल रहे हैं। तो अब जम्मू कश्मीर हमारा प्लेस ऑफ एनुमरेशन है और प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस में इनका जम्मू और कश्मीर था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटर स्टेट माइग्रेशन की। तो जम्मू कश्मीर में इंटर स्टेट माइग्रेशन, सॉरी, जम्मू कश्मीर वालों को हम माइग्रेंट नहीं मानेंगे जब हम विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे जो चीज आ रही है, स्टेट्स इन इंडिया बियॉन्ड द स्टेट ऑफ इन्यूमरेशन, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला अगर इस डेफिनेशन से देखेंगे तो वहाँ एक भी नहीं मिलेगा हमें दूसरे स्टेट से जम्मू कश्मीर में इंटर स्टेट माइग्रेशन अगर वो कर रहे हैं। तो वही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था कि इसका वैसे ही हर स्टेट में आपको जहाँ पे हम ये वाला डेफिनेशन फॉलो करेंगे या फिगर 0 हो जाएंगे। ये अभी पूरा इंटरनेशनल और वो सब चलेगा। ऐसे ही हिमाचल में हिमाचल वाले देख रहे हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर की बात चल रही है, तो कहाँ कहाँ से लोग माइग्रेट हुए हैं ये टेबल, ये कॉलम बताएगा आपको। जम्मू कश्मीर वाला तो 0 हो गया। उसके बाद हिमाचल से जम्मू कश्मीर में इतने लोग हैं, ठीक है। रूरल अर्बन अलग बात है, लेकिन ये टोटल फिगर देखेंगे तो हिमाचल से जम्मू कश्मीर इतने लोग आए। देन पंजाब से ये फिगर है टोटल। वैसे ही सारे स्टेट जब खत्म हो जाते हैं तो नीचे एक डेटा आता है हमारा। अभी जम्मू कश्मीर में ही चल रहे हैं, आप इसको ड्रैग करेंगे, सारे स्टेट की बात खत्म हो गई। कंट्रीज देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल इन माइग्रेशन इंडिया का आप यहाँ से निकाल सकते हो। अंडमान खत्म हुआ, लेकिन लास्ट रेसिडेंस आउटसाइड इंडिया का फिगर हर स्टेट का अलग दिया हुआ है, बाद में आप टोटलिंग भी कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है उस स्टेट में लास्ट रेसिडेंस आउट ऑफ इंडिया 15,000, ठीक है। और फिर कंट्रीज इन एशिया बियॉन्ड इंडिया, ये इतना फिगर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये टोटल वाला फिगर देखिए, ये वाला 22 है ना। सो कंट्रीज इन एशिया बियॉन्ड इंडिया 22,000, ये रूरल अर्बन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ये फिगर आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर में अभी कितने हैं जो कभी अफगानिस्तान से आए होंगे, आज से 20 साल पहले होंगे, हो सकता है 2 साल पहले। तो ये सब फिगर्स यू कैन, हाँ बहुत माइन्यूटली आपको देखना पड़ेगा एक एक चीज। सर्वे डेटा से सेंसस इसलिए अलग है कि फुल इन्यूमरेशन है और आपको एक सिंटेक्स पे सारा काम नहीं होगा, आपको माइन्यूटली देखना होगा, कॉन्सेप्ट समझने होंगे, बार बार ट्रायल एंड एरर। कई बार एस्टिमेट मैच भी नहीं करते हैं कुछ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का आंसर सारे लोगों ने नहीं दिया है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात से कितने लोग आए हैं ना, ऐसे ही करके आप देखेंगे। अफ्रीका से जम्मू कश्मीर में, अमेरिका से, लेकिन ये इन माइग्रेशन फिगर, आउट माइग्रेशन समझने की गलती नहीं करना है आप। और ये 50 साल 60 साल लाइफ टाइम माइग्रेशन है, कभी भी वो आए हुए हैं, ठीक है। मतलब एक इस डेटा में बहुत घुसना होगा आपको, क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। अब देखोगे आप, पर्सन है, फिर मेल फीमेल भी मिलेगा आपको, लेस देन 1 ईयर, 1 to 4 ईयर, 5 to, ड्यूरेशन है एक्चुअली, वो कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, ये एज नहीं है, ये इनका रहने का ड्यूरेशन है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। ड्यूरेशन नॉट स्टेटेड, यही पे एस्टिमेट थोड़े गड़बड़ाते हैं, फिर आपको एडजस्ट करना होता है या फिर अदर्स लिखना होता है। किसी ने ड्यूरेशन नहीं बताया, उनका डेटा ही नहीं है ड्यूरेशन का, ओके।
तो इस तरह के वेरियस टेबल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं सेंसस से, रेसिडेंस के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल सकती हैं। लेकिन जो डाउट्स कुछ लोगों को है वो मैं फिर क्लियर करूंगा। मैं देखता हूँ उस डेटा को फिर से, वहाँ पे दिक्कत क्या है। इसके अलावा कुछ अगर आपको पूछना हो तो, और हमेशा ध्यान रखिए, बहुत लोग मतलब मेल करते हैं मुझे या पूछते हैं कि इंडिया से कितने लोग बाहर जा रहे हैं, वो डेटा कहाँ मिलेगा। आई एम सॉरी टू से सेंसस विल नॉट प्रोवाइड दिस डेटा। 2007-8 का एनएसएस में थोड़ा सा इन्होंने पूछा था, उसके पहले के भी एक राउंड में आउट माइग्रेशन का एस्टिमेट निकालने की कोशिश की थी, उसमें दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। बट हियर इन दिस सेंसस डेटा ओनली वी हैव इन माइग्रेंट्स बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। इन्यूमरेटर जब आता है आपके घर में, आपसे पूछता है आप कहाँ से आए हैं, बस वही इंफॉर्मेशन मिलती है। एज वाइज मिल जाएगी आपको, आपको ड्यूरेशन वाइज मिल जाएगी आपको, रूरल अर्बन मेल फीमेल एवरीथिंग यू विल गेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है चीजें? यस सर। सर ओके, हाँ बोलिए। सर जो 0-0 वाला कॉन्सेप्ट था उसको एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा ठीक है। इसके लिए पहले ना स्टेट वाली चीजें को समझना होगा आपको। अब जैसे पहले इंडिया वाला है ना, ये क्या बता रहा है, इंडिया में हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कितने माइग्रेंट मतलब अदर स्टेट्स में है, मैट्रिक्स बना के जब ये निकालते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे ही ये हेडिंग पहले पढ़ लीजिए, लास्ट रेसिडेंस है ना। लास्ट रेसिडेंस कहाँ था? लास्ट रेसिडेंस इनका जम्मू कश्मीर था, इंडिया वाले हैं। इंडिया में जम्मू कश्मीर के अदर स्टेट में इतने माइग्रेंट हैं, इनका क्या पंजाब है, ठीक है। फिर चंडीगढ़, ऐसे करते करते ये इंडिया का फिगर है ना, करंट प्लेस इंडिया चल रहा है अभी। लेकिन इंडिया जहां खत्म होगा तो अब करंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन्यूमरेशन जम्मू कश्मीर है। ओके, तो जम्मू कश्मीर में भी जो बेसिक टेबल्स हैं, लास्ट रेसिडेंस विद इन इंडिया और वो सब हो गया, लेकिन हमारा ये 0 वाला यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये चीज इसको पढ़िए, स्टेट इन इंडिया बियॉन्ड द स्टेट ऑफ इन्यूमरेशन, वो फिगर है। तो अपने स्टेट से बाहर के लोग यहाँ पे है ना, उसकी जब बात आती है तो जम्मू कश्मीर में जम्मू के बाहर वाले 0 ही दिखेंगे ना। आप थियोरेटिकली सोचिए, इसको लॉजिकली सोचिए। जम्मू कश्मीर में हिमाचल वाले 8000 आ गए, लॉजिक बनता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आउट ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर लास्ट रेसिडेंस वाले तो 0 ही होंगे ना भाई, क्योंकि वो तो जम्मू कश्मीर लास्ट स्टेट कैसे बता सकते हैं। ओके, बाहर का स्टेट तो है नहीं, विद इन स्टेट है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। हर स्टेट में 0 लगता है। लेकिन वहीं अगर तुरंत आ जाते हैं, लास्ट प्लेस कहाँ है भैया आपका, हिमाचल प्रदेश है, तो आप जम्मू कश्मीर इन्यूमरेटर हो रहे हैं, इन्यूमरेशन हो रहा है। हाँ, हिमाचल से वो 10 साल पहले आए, जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, ठीक है। ऐसी ही चीज आपको दिखेगी जम्मू कश्मीर का जैसे ही खत्म होता है। लेट मी चेक, हिमाचल शुरू हो गया है ना। अब हिमाचल और जम्मू का हम देखते हैं। हिमाचल करंट प्लेस है, लास्ट रेसिडेंस आपका कश्मीर, हिमाचल काफी आगे बढ़ गया, क्या एशिया वाला चला गया, ठीक है, ऊपर होगा। हिमाचल टू हिमाचल, लुक एट इट दिस। हिमाचल वाले अदर स्टेट की जहां बात हो रही, ये आ रहा है ना, स्टेट्स इन इंडिया बियॉन्ड स्टेट ऑफ इन्यूमरेशन। ये हेडिंग के अंदर जब हम घुसते हैं तो ये प्रॉब्लम क्या मतलब, एक डेटा का नया डायमेंशन शुरू होता है। हिमाचल वाले हिमाचल में क्यों बताएंगे अपने आप को आउट ऑफ स्टेट वाला, तो कोई नहीं मिलेगा आपको। वही हिमाचल वाला जम्मू कश्मीर में
इतना मिल जाएगा, 15,000 मिल जाएगा, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ये हर स्टेट का मिलेगा। इस डेटा से यू कैन प्ले विद दिस। मैंने दिया भी है मेरे ख्याल से, ये जब आप देखोगे 2011 वाला दिया है मैंने आप लोग स्टडी मटेरियल में। प्लेस ऑफ बर्थ का एक दिया है, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस का दिया। प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस से देखिए, प्लेस ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन है। तो अगर इस डेफिनेशन से देखें हम 2011 में, तो वी हैव 45 करोड़ माइग्रेंट्स, ओवरऑल माइग्रेंट्स इन इंडिया, लेकिन उसमें जैसे इंटरनेशनल कुल माइग्रेंट्स का दें तो वी हैव 44 करोड़। हाँ बोलिए सर Yes. एक्चुअली लास्ट रेसिडेंस एल्सवेयर इन इंडिया फॉर जम्मू कश्मीर अगर देखेंगे तो मतलब ये टोटल वैल्यू है कि जम्मू कश्मीर के लिए ये टोटल इन माइग्रेंट्स, राइट सर? यस, फ्रॉम अदर स्टेट। हाँ, फ्रॉम अदर अदर स्टेट। स्टेट में सारे अदर स्टेट का हम जोड़ते हैं, ठीक है, हाँ हाँ अलग अलग हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन ये जम्मू टोटल कश्मीर वैल्यू में है हर इन स्टेट का माइग्रेंट्स। जम्मू कश्मीर से 0 आएगा, क्योंकि वो हाँ हाँ, क्यों बताएगा अपने आप को, है ना। लेकिन सर जब हम मैट्रिक्स करके वो इसी से अगर जब मैट्रिक्स करके हम वो रॉ वैल्यू एंड कॉलम वैल्यू ऐड करते हैं हाँ तब वो इन माइग्रेशन का वैल्यू के साथ ये इन माइग्रेशन का वैल्यू मैच नहीं होता है सर। वो होता है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप सर्वे डेटा में जब करते हैं एनएसएसओ में तो एकदम 1 to 1 मैच करता है। इसमें कहीं कहीं कुछ चीजें एरर आती हैं, वो थोड़ा सा डिटेल जब आप करेंगे स्टेट वाइज एनालिसिस तीनों का 91 2000, तो ये चीजें फिर क्लियर होती हैं। कहीं कहीं मेरे साथ भी हुआ है कि वो चीजें एग्जैक्ट मैच नहीं करती हैं, क्योंकि आप सही सर बोल रहे हैं कि इन और आउट दोनों हमारा मैच होना चाहिए। वही जो इंटरनेशनल वाला माइनस हो रहा है ना, क्या हो रहा है हमारे साथ, आप फिर ना इसको फिर ध्यान में रखना होगा। ये वाला जो डिफरेंस है ना, ये करीब 1 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि जब मैट्रिक्स आप कैसे बनाते हो बताओ? सर यहाँ से कौन मान बोल रहे लीजिए हैं? ये एक मिनट जम्मू कौन? कश्मीर वाला यहाँ से लेके उसको हम पेस्ट करते हैं एक्सेल में, ठीक तो है, लाइकवाइज सब ऐसे ऐसे करके आते हैं, तो बीच में वो 0 0 0 करके करके जीरो, हाँ आते हैं। डायगोनल ऐसे बन जाता है, हाँ ठीक है। हाँ, तो फिर हम रॉ वैल्यू एंड कॉलम वैल्यू ऐड करके इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन हम निकालते हैं। ठीक है, लेकिन आप इन आउट माइग्रेशन माइग्रेशन को तो निकाल दिया हमको उसके देता नहीं बाद, डायरेक्ट सॉरी है सर। बोलिए। तो हम लोगों को आउट माइग्रेशन को वेरीफाई करने का हमारे हमारे पास डेटा नहीं है, जो मिलता है वही है। लेकिन जो इन माइग्रेशन वाला है उसके साथ अगर जब मैं ये लास्ट रेसिडेंस और एलसीआर इन इंडिया का वैल्यू मैच करता हूँ तो वो मैच नहीं होता है। दिस इज द प्रॉब्लम कितने का फर्क पड़ता है सर, बहुत। पूरे जैसे इंडिया कि में? मेरा वेस्ट बंगाल के लिए निकाला था, उसमें वही प्रॉब्लम आ रहा था। मैं इसीलिए उसमें वो आउट माइग्रेशन वाला दिया ही नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन को रखे वो उसमें इन माइग्रेशन को मतलब लिया है, लेकिन वो उसमें मैच नहीं हो रहा था। मैं सोचा कि क्या करें फिर, तो इसी दैट्स व्हाई दैट डे आई आस्क्ड टू डीपी सिंह सर एंड ही वाज हाँ, टेलिंग कि इट इज अवेलेबल, बट इट इज अवेलेबल, हाँ, बट इट इज डिस्ट्रिक्ट में नॉट इतना अवेलेबल मैचिंग है ही विद नहीं। दैट थिंग। व्हाट वी कैन गेट, पूरे इंडिया का मैट्रिक्स बनाते हैं तो इन एंड आउट निकालते हैं, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक हमें एस्टिमेट मिल जाता है। लेकिन उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि विद इन कंट्री वाला लेना होता है। टोटल फिगर जो आप ले रहे हो ना, हम्म। ये विद इन कंट्री वाला हमेशा लेना है। ये कहाँ गया, इसमें ये वाला जो इंटरनेशनल है वो हमेशा हटा देना होता है आपका। जैसे हर इंडिया का और हर स्टेट का दिया हुआ है ना, लास्ट रेसिडेंट विद इन इंडिया, ये वाला लेना है हमेशा हर जगह, ठीक है। अच्छा, तो ये तो इन माइग्रेशन होगा। यस, इन माइग्रेशन होगा, लेकिन दूसरे स्टेट में तो आउट माइग्रेशन में काउंट होगा ना जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो। हाँ, सर वही तो बता रहा हूँ, वो मैच नहीं होता है इसके साथ वो मैट्रिक्स वाला जैसे वैल्यू। ये टोटल फिगर लिया जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। है, है। मैं उस पर एक बार फिर करता हूँ, देखता हूँ, अगर नेक्स्ट क्लास में मुझे टाइम मिले मैं थोड़ा सा उसको और डिटेल में देख के, क्योंकि 91 में थोड़ी सी सर दिक्कत होती है। हाँ बताइए, मैं आप कहाँ करके पे आपको हैं? मेल करता हूँ सर। हाँ मेल आज कीजिए, करके कहाँ पे? मेल करता हूँ, आप कल कंफर्म कर आप देना। कहाँ पे हैं अभी? मैं अभी घर मैंने मतलब कोच बिहार वेस्ट बंगाल में हूँ अभी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सर मुस्लिम हुसैन। अच्छा अच्छा, वो अब, हाँ मुस्लिम, ठीक है ठीक है। हाँ, आपसे तो पहले भी बात हुई थी मेरी। हाँ हाँ सर। ठीक है ठीक है, एक बार करके दीजिए मुझे। और हम्म, हमेशा डेटा सेंसस के
अभी वाला वेबसाइट है मेरे ख्याल से काफ़ी सुधार दिया है चीज़ों को, और नहीं तो मेरे पास भी पहले के वेबसाइट से उससे भी डाउनलोड किया हुआ डेटा मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो सेंसस में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं अभी बेसिक्स पे जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक मटेरियल आपको और दिया है, मॉड्यूल, ये मैंने लिखा था अपने ग्रुप के साथ फॉर ईपीजी पाठशाला। इसमें सेंसस एंड सर्वे डेटा के बारे में वी हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट, ऑल द टेक्निकलिटीज, शायद कुछ एग्जाम्पल भी दिया होगा, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, सो यू कैन गो थ्रू फॉर अदर डिटेल्स। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है एनएसएस, अभी देखते हैं कितना टाइम है हमारे पास, वी कैन गो थ्रू दैट। स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड ना, कितना टाइम है हमारे पास? 15 मिनट्स। एक और क्लास में लूंगा, उसमें हम क्लियर करेंगे इसको। सो द नेशनल सैंपल सर्वे, National Sample Survey Office conducts various kinds of socio-economic surveys and its employment and unemployment related survey. Now it is replaced by periodic labor force survey. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का पहले एक अलग शेड्यूल होता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस करती थी, पर अब सीएसओ और शायद एनएसओ हो गया है, सीएसओ ही है शायद। तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे दे आर कंडक्टिंग इन, इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ माइग्रेशन डेटा। एनएसएसओ की बात कर रहे हैं, पीएलएफएस पता नहीं माइग्रेशन का कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि नहीं, 2007-8 के बाद तो नहीं हुआ है, 7-8 तक वी हैड एनएसएस ओनली। ठीक है, सो नेशनल सैंपल सर्वे इज अ नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे, इट कलेक्ट्स, यूज्ड टू कलेक्ट सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन and migration data as part of its employment and unemployment schedule at 6 to 7 years interval. To assess the volume and pattern of migration in India, the NSSO beginning with 9th round, 1955, okay, conducted several surveys to collect migration data for its inquiry into employment and unemployment. However, from 13th round, September 57 to May 1958 onwards, more detailed information about migration is being collected. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2010 में जो लेटेस्ट आई थी उसमें ये बात लिखी गई है। इन 49th राउंड कंडक्टेड इन 1993, ये डेटा है मेरे पास, मैंने किया था इसमें थोड़ा सा काम। So migration data was collected through Schedule 1.2, which comprehensively covered housing condition and migration. In 6th quinquennial round, 55th round में इस पे मेरे पब्लिकेशन थे, तो information of migration was collected for each household member of the sample household in the employment and unemployment schedule. The most recently available migration data from this survey comes from the 64th round of the NSS. जो latest है हमारे पास अभी जो डेटा है, सबसे डिटेल डेटा था ये, लेकिन now it has become old. So they have asked information about the usual place of residence, location of last usual place of residence, वही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है इसमें भी, लेकिन 6 मंथ का स्ट्रिक्ट लिमिटेशन होता है, 6 मंथ से ज्यादा कोई रहेगा तभी वो परमानेंट माइग्रेंट में काउंट होगा। अदरवाइज एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो टेम्पररी माइग्रेशन की बात करते हैं लोग। So these questions were asked to the head of the household. Here the usual place of residence of a person was defined as a place or village where the person had stayed continuously for a period of 6 months. 6 मंथ आप रहे हैं यहाँ पे, तभी यहाँ पे आप एज अ माइग्रेंट काउंट होंगे। 6 मंथ्स के पहले हैं तो टेम्पररी माइग्रेशन में आपका काउंटिंग होगी। लेकिन एनएसएसओ में दो तरह से इन्यूमरेशन होता है, इन्यूमरेशन नॉट मतलब सैम्पलिंग होती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन माइग्रेशन भी है, आउट माइग्रेशन भी है। सेंसस ने ये कोशिश की थी 64th राउंड में। मेजर डेटा जो बड़ा डेटा है वो डिफैक्टो बेसिस पे इन माइग्रेशन है, आपके घर में लोग आएंगे पूछेंगे लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहाँ था। The last place of usual residence was defined as a place where the migrant had stayed continuously for a period of 6 months or more before moving to the place of enumeration. A place of enumeration जो होगा वहाँ भी 6 महीने से ज़्यादा आपको रहना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होते हैं माइग्रेंट डिफाइन होने के लिए। If the place of enumeration was different from the last usual place of residence, then the person was termed a migrant, permanent or semi-permanent. अब एक मैंने ओवरव्यू बनाया है माइग्रेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए। यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस का क्या डेफिनेशन था, पिछले जो 3 बड़े राउंड थे एनएसएस के, 49th which was conducted in 93, 55th conducted during 99 to 2000 and 64th July 2007 to 2008।
यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस तीनों राउंड में सेम था, देयर वाज नो चेंज। इसको ध्यान से देखिए। द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस हैज बीन डिफाइंड एज अ प्लेस where the person has stayed continuously for a period of 6 months or more. Migrant household, कोई हाउसहोल्ड माइग्रेंट हाउसहोल्ड कब होगा? जब वहां से कम कोई माइग्रेशन हुआ हो या पूरा एंटायर हाउसहोल्ड माइग्रेंट हो गया हो. So if the entire household as was being enumerated had moved to the place of enumeration during the last 365 days preceding the date of survey, it was considered a migrant household. ठीक है, वहां सर्वे इन्यूमरेटर्स गए, पता चला कि ये माइग्रेट हाउसहोल्ड था पहले यहाँ पे और अब पूरा का पूरा हाउसहोल्ड माइग्रेट हो गया है. ठीक है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन अगर उनके पड़ोसी थे तो माइग्रेंट हाउसहोल्ड हो गया. या फिर आप मेरे ख्याल से हाँ आउट माइग्रेशन में ही इंफॉर्मेशन है. उसके बाद फिर किसी घर में वो जाते हैं, अब पूछते हैं कितने मेंबर आपके कहीं बाहर माइग्रेट हुए हैं. यही सेंसस में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एनएसएस हैज ट्राइड 2 times in 49th round and 64th round. Any former member of a household who left the household for a stay outside the state during the last 5 years before the date of survey has been considered as out migrant provided he or she was alive and residing outside the state on the date of inquiry. ठीक है, कोई भी फॉर्मर, यही डेफिनेशन फॉलो हुई है 2007-8 वाले राउंड में, थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने. एनी फॉर्मर मेंबर ऑफ अ हाउसहोल्ड हु लेफ्ट द हाउसहोल्ड एनी टाइम इन द पास्ट. ठीक है, यहाँ पे स्टेट पूछा गया था, आउट ऑफ स्टेट. यहाँ पे स्टेट की बाउंड्री नहीं है, विद इन स्टेट वाले को भी हम कंसिडर कर रहे हैं. अगर कोई कंपैरिजन करता है इन दोनों माइग्रेंट का, आउट माइग्रेशन का, तो ये ध्यान रखना होगा उसे. एनी टाइम इन द पास्ट फॉर स्टे आउटसाइड द विलेज और टाउन वाज कंसिडर्ड एज आउट माइग्रेंट प्रोवाइडेड ही और शी वाज alive on the date of survey. Then migrant, a household member whose last usual place of residence anytime in the past was different from the present place of enumeration was considered as a migrant member in the household. अच्छा, अब ये माइग्रेंट जो है ये डिफैक्टो माइग्रेंट है. ठीक है, माइग्रेंट यहाँ पे आपके घर में इन्यूमरेटर आते हैं, ठीक है, और पूछते हैं कि भाई साहब आप कहीं से माइग्रेट होकर आए हैं, आपका लास्ट प्लेस ऑफ यूजुअल रेसिडेंस क्या था? मैं बोलूँगा मेरा मुंबई था. कितने साल पहले? 10 साल पहले. ये तो यहाँ आप 10 साल से रह रहे हो, मुंबई में क्या रेगुलर रहे थे मोर देन 6 मंथ? तो आई विल से यस. तो यहाँ के लिए मैं माइग्रेंट हूँ जिसका लास्ट प्लेस ऑफ यूजुअल रेसिडेंस मुंबई था, महाराष्ट्र था. मेरा वो डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे, मेरा स्टेट पूछेंगे, ठीक है, 2-3 इंफॉर्मेशन पूछेंगे. यही डेफिनेशन 55th राउंड में भी यूज हुई है, 64th राउंड में भी यूज हुई है. इफ यू वांट टू डू एनी ट्रेंड एनालिसिस यू कैन यूज इजीली विदाउट एनी एडजस्टमेंट दिस डेटा. फर्दर रिटर्न माइग्रेशन इन 49th राउंड रिटर्न माइग्रेशन का इंफॉर्मेशन था और यही 64th में था, बट 55th राउंड में ये इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी गई. यही प्रॉब्लम है माइग्रेशन डेटा की, रेगुलर बेस पे एक जैसा डेफिनेशन फॉलो नहीं हो रहा है और एक मतलब स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. इसके चलते हमें ट्रेंड एनालिसिस में काफ़ी दिक्कत होती है. या तो फिर हम उसको किसी नोट लगा के एडजस्ट करते हैं या कुछ और कोशिश करते हैं अलग डेफिनेशन उसको दिखाने की. अब रिटर्न माइग्रेशन इज व्हाट? A return migrant whose place of enumeration was his or her usual place of residence anytime before his her last usual place of residence has been considered as a. इसको ऐसे समझना है, इनके टर्म्स को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, मैं इलाहाबाद में सपोज था 10 साल पहले, फिर 3-4 साल के लिए मैं मुंबई चला गया, ट्रांसफर हो गई थी मेरी जॉब. ओके, फिर 2 साल से मैं फिर इलाहाबाद आ गया. तो यहाँ ये जो है ये मेरा, मैं यहाँ के लिए रिटर्न माइग्रेंट हूँ. ओके, तो रिटर्न माइग्रेशन का ये डेफिनेशन फॉलो होगा. देन शॉर्ट टर्म माइग्रेशन, जिसके बारे में देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन इन 49th राउंड, बट 55th राउंड एंड 64th राउंड में ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे बारे में. ड्यूरिंग द लास्ट 365 days preceding the date of survey he or she stayed away from the village or town
for 60 days or more, either for employment or better employment or in search of employment. ये थोड़ा सा कट जा रहा है शायद. हाँ, is it visible to all of you? बहुत congested है, but hopefully you font बहुत छोटे तो नहीं है. Yes, sir. हाँ, तो इन 55th राउंड अब क्या होता है, आप इन माइग्रेशन पूछ लेते हो डिफैक्टो बेस पे. आप घर जाते हो, उनसे पूछते हो भाई कितने लोग यहाँ जो हैं जो बाहर से आए हैं. लेकिन एक और इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये जो माइग्रेंट्स होते हैं टेम्पररी शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स, दे बिलोंग टू दिस प्लेस, इसी घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंदर वो बाहर जाते हैं काम करने को. तो दीज आर द शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स बट मेंबर, करंट मेंबर ऑफ दिस हाउसहोल्ड. तो ये आउट माइग्रेंट डायरेक्ट नहीं है, परमानेंट आउट माइग्रेंट नहीं है, इस डेफिनेशन में नहीं फिट होते हैं, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा यूजुअल रेसिडेंसी पीरियड इनकी खत्म नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है. सो दीज माइग्रेंट्स एक साल के अंदर अगर ये गए हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए काम करने को, तो इनको हम टेम्पररी माइग्रेंट कहते हैं. इसमें लिमिटेशन जो थी 55th राउंड में, ड्यूरिंग द लास्ट 365 days preceding the date of survey, he or she stayed away from the village or town for 60 days or more, either for employment or better employment or in search of employment. Further, in 64th round, ये जो 6 days का देख रहे हैं ना, 2 महीने से ज्यादा गए हैं तभी इनको काउंट किया गया था विद इन लास्ट 1 year. यहाँ पे क्योंकि कैप्चर नहीं हो पाता था, कई लोग 1 महीने के लिए भी जाते थे काम कर, 1 महीने गए, 2 महीने यहाँ रहे, फिर गए. तो इसको कैप्चर करने के लिए एनएसएस ने एक मेथड निकाला, क्यों ना हम 1 महीने का मिनिमम रेजिडेंसी पीरियड देखें. सो हु हैड स्टेड अवे, घर से दूर 1 महीने के लिए कम से कम बाहर रहे हैं, तो लेकिन 6 मंथ से कम, 6 मंथ से ज़्यादा टोटल पीरियड नहीं होना चाहिए, नहीं तो परमानेंट वाले क्लॉज में आ जाएंगे वो. तो 1 महीने से 6 मंथ के बीच अगर वो माइग्रेट किए हैं, बाहर काम के लिए गए, दीज आर लेबर माइग्रेंट, यू हैव फॉर सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डूइंग एनी एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. So thus by definition of household and household members, such persons are considered as the members of the household from which they had stayed away for such short duration. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अब थोड़े क्लियर हो गए, मैं पीपीटी भी शेयर करूंगा. ओके, होप इट इज फाइन फॉर यू. इसमें भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो मैं एक और क्लास देखता हूँ, उस पर आपको बताऊंगा. ठीक है. ओके. तो अभी के लिए इतना ही. फिर 2 बजे हमारे रिसोर्स पर्सन मिलेंगे आपसे, प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी, सर्वे डेटा एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस. ही विल टॉक अबाउट द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. ठीक है. ठीक है सर. ओके. कोई और डाउट किसी को पूछनी हो? यस. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. सर हम वो एस्टिमेशन ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम एनएसएसओ वो प्रैक्टिकली अगर होते वो अच्छा होता मेरे लिए. कौन सा एक्सट्रैक्शन? क्या सर बोल रहे हैं? एस्टिमेशन ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम एनएसएसओ डेटा, माइग्रेशन फ्रॉम एनएसएसओ डेटा एस्टिमेशन. हाँ, प्रैक्टिकल एस्टिमेशन. एस्टिमेशन. अच्छा, मतलब आप स्टेटा में चाह रहे हैं ना, वो करवा दूं? नहीं, हाँ मेरे हाँ दिमाग हाँ में है हाँ. ये चीज, मैं कुछ बताऊंगा आपको. कुछ चीजें मैंने रेडी भी ठीक रखी हैं, मैं आई विल ट्राई. ठीक. जैसे ही इस बीच कोई ओके गैप सर. सेशन मिलता है, या मेरे फॉर्मल सेशन भी है लेकिन थोड़ा कम कर दिया गया, उस दिन मैंने एक्चुअली, या बिकॉज प्रोफेसर रूप मित्रा वाला भी एडजस्ट करना है हमें, जो उस दिन गड़बड़ हुई, तो मैं कराऊंगा उसको, मेरे है दिमाग में, तो वो भी मेरे मतलब आउटलाइन में है. ठीक है. तो अब Thank you, sir. Thank you so much for your very insightful and lecture. So I would like to request Shivani Sinha to summarize Kunal sir's lecture and formal vote of thanks. Shivani, over to you.
Hello. 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 Yeah. Shivani, audible? Yes, sir. Please continue. Hello. Shivani. कुछ टेक्निकल एरर है क्या? नेटवर्क So, sir, I think there is some technical glitches. हाँ We कुछ will शायद म्यूट नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं। join in. मैं रोज आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। Sorry, sir. चलिए, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। तो फिर 2 बजे मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और आपके जो भी डाउट होंगे और स्टडी मटेरियल भी पढ़ लीजिए, तो और फिर हम लोग परसों तक एक लेक्चर करते हैं ना, ठीक है? ओके, ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. अच्छा हाँ, एक छोटा सा नोटिस है, ये जो लेक्चर होगा ना हमारा, Wait for few minutes. Shivani will join. नहीं काफी लोग वो कर रहे हैं, मैं बस बताना चाह रहा हूँ आज 3:30 और 4 के बीच जो हमारा मतलब गैप होगा, थोड़ा देर तक रहेंगे आप लोग। जैसे ही 2 to 3:30 खत्म होगा ना लेक्चर, थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम लोग अबाउट द फीडबैक ऑफ दिस सेशंस, क्योंकि आज 3rd डे है। प्लस हम एक ग्रुप फोटोग्राफ लेंगे, स्क्रीनशॉट, तो सबको अपना वीडियो ऑन करना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है? 3:30 वाला जैसे सेशन खत्म होगा, 2 to 3:30 वाला एक गुड ग्रुप फोटोग्राफ होगा। हाँ, प्लीज बी रेडी फॉर दिस। सबको अपना वीडियो ऑन करने होंगे फॉर रिकॉर्ड पर्पस। ओके, थैंक यू। So should we close? Actually, Shivani request. अच्छा, शिवानी मॉडल। मेरी आवाज आ रही है? यस यस, Shivani. सॉरी नेटवर्क की प्रॉब्लम हर जगह हो रही है, हम लोग भी कल फेस कर रहे थे। I'm really sorry for the delay नो नो, जस्ट It's okay, sir. issue Yes, in the network. So actually, first, I think most of the students are present. I'm really sorry for the technical glitch, and I would like to say that thank you so much, sir, for providing such a informative information. You have talked about various nut and bolts of the migration which we should consider, and you have taught about from the sense practical informations about how from the census we can take informations and we can use in our studies, and in which you have talked about in migrations and out migrations, how the and talked about the issues which we face while taking information from those tech practical issues, like while we are considering the data, what precautions we should take or what considerations we should have. And you have talked about various technical terms of which what is the practical definition and how we should consider these informations, the basic gist of that. And I would really thank you for providing such an information, and we really owe you a special vote of thank you. Thank you, sir. And Thank you sorry for so this much. technical glitch. So I've shortened my definition. We don't have control on technology. okay, okay. Yes. I'm really sorry, sir. I'm genuinely No, sorry for this. don't feel sorry. We are happy for you. It's second time you are giving vote of thank to a resource Thank person. you. Thank It's my you so much. pleasure.
Thanks. Thank you. So thanks, Mani. Rani, So now we can close the session. second. Thank you so much. Sure, sir. Thanks. Okay, thanks. Resume at 2 o'clock. Yeah, welcome. Take care. Okay. Thank you. Bye.